آپ حضرات ضرور سے کے ساتھ چلے اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وأصحابه وبارك وسلم دائما أبدا. ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیے. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم دائما ابدا. دیکھیے حاجی لوگ حج کر کے آ گئے. ذی الحج کے مہینے میں جانے والے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے اور محرم میں واپس آتے ہیں. محرم اسلام کا اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور ذی الحج جو ہے اسلامی سال کا آخری مہینہ. دونوں میں عجیب سی مناسبت ہے, عجیب سی بات ہے. جب سال ختم ہوتا ہے تو ایک عظیم قربانی کے ساتھ ختم ہوتا ہے. اور آپ لوگوں نے سنا بھی ہے, زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کچھ اور آج بتانا ہے. اور جب اسلامی سال شروع ہوتا ہے, ختم ہوتا ہے, تو قربانی کی یاد کو لے کر کے, اور جب شروع ہوتا ہے تو بھی قربانی کے ساتھ شروع ہوتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ وہاں بھی اولاد کی قربانی مانگی گئی. اللہ کی جانب سے حکم جو تھا وہ بیٹی ہی کی قربانی کا. دمبا یا بکرا یا کسی جانور کی قربانی کا حکم نہیں تھا. لیکن خدا ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. کسی کو پتہ ہی نہ چل سکا. نہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا, نہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پتہ چلا, اور اچانک چھری چلتی رہی. باپ بھی اپنا کام کرتا رہا, بیٹا بھی تسلیم و رضا کا پیکر بنا رہا, اور قدرت نے ایک نیا فیصلہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے حضرت جبریل کے ذریعے سے ایک دمبے کو بھیجا اور اس کی قربانی عمل میں آئی. اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن شریف میں حکم تو یہ ہوا تھا کہ صاحب آپ قرآن ہی میں ہے نا کہ آپ اپنے بیٹے کو قربان کیجیے. اور جب بیٹا قربان تو نہیں ہوا, بیٹا کی جگہ دمبا قربان ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ نے جب تصدیق فرمائی قرآن میں تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کے بیٹے کو ہٹا لیا اور وہ آپ کی قربانی منظور نہیں ہوئی, بلکہ صاف لفظوں میں یہ کہا گیا قد صدقت الرؤیا. آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. اور اس کے بعد اسی صورت میں جو ابھی میں نے آیت پڑھی ہے, اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. تمہارے عزم میں کوئی فرق نہیں تھا, تمہارے ارادے میں کوئی تبدیلی نہیں تھی. اللہ تو جانتا ہے نا بھائی, اللہ ہمارے دل کا حال جانتا ہے نہیں جانتا. تو اللہ ہی کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ تمہارے عزم و ارادے میں کوئی تبدیلی نہیں تھی, تم تو اپنا کام کر چکے. یہ اور بات ہے بچانے والے نے بچا دیا.
तुम अपना काम कर चुके। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे बेटे को बचा लिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब हुक्म भी यही हुआ था और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था तो इस्माइल को बचाया था। इमाम हुसैन का जिक्र नहीं किया, अली के लालों का जिक्र नहीं किया। खैबर शिकन मौला अली मुश्किल कुशा, जिनकी ननिहाल भी जन्नत है और जिनकी ससुराल भी जन्नत है। आप जरा गौर कीजिए, कितना अहम मसला है ये। इब्राहिम को बचा लिया, इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा लिया, बच गए इसमें, और नस्ल इब्राहिम की नशूद व नमा शुरू। और उसके बाद जब ये आफताब पूरी अपनी जवानी के साथ में तुलू हुआ तो फिर हुक्म हुआ कि उसी नस्ल इब्राहिमी से हमें चाहिए ऐसा जो कुर्बान हो। अल्लाह अल्लाह, बाई बिस्मिल्लाह इब्राहिम। बिस्मिल्लाह की बे का नाम इस्माइल है और बिस्मिल्लाह की मीम का नाम हुसैन है। बे से ये कुर्बानी शुरू होती है और नून पर खत्म हो जाती है, हुसैन पर खत्म हो जाती है। वहां भी एक हिकमत थी और यहां भी एक हिकमत है, बताऊंगा इंशाअल्लाह और आपको अच्छा लगेगा। मैं हजरत इमाम आली मकाम की बारगाह आलिया में, बल्कि दोनों शहजादों की बारगाह आलिया में सरकार का वो कौल पेश कर रहा हूं, एक हदीस सुना रहा हूं। एक हदीस पहले सुनिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अन अली बिन, हजरत मौला अली खुद इस हदीस के रावी हैं। अन अली बिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल हसन अशबह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सदरी इला रास, वल हुसैन अशबह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा कान मिनल अस्ल, मा कान मिनल अस्मद ज़ालिक। हजरत अली फरमाते हैं कि हजरत इमाम हसन हजरत रसूल कौनैन के की शबी, यानी जैसे रसूल पाक का चेहरा था और चेहरे से लेके कमर तक बिल्कुल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे थे हजरत इमाम हसन, और वहां से लेके पैरों तक हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु। कुछ रवायतों में आता है कि जब ये दोनों पैदा हुए, ज्यादा उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है दोनों। तो जब पहले शहजादे पैदा हुए तो एक रवायत में आता है कि उन्होंने उनका नाम हरब रखा, और एक में आता है कि हमजा रखा। तो सरकार तशरीफ लाए, बच्चे को गोद में लिया, फरमाया तुमने क्या नाम रखा? बताया कि मैंने अपने तरीके से ये नाम रखा है। कहा नहीं, मुझे हुक्म हुआ है कि इनका नाम बदल दूं। क्या सरकार आपकी मर्जी, जैसा आप चाहें, आप मालिक मुख्तार हैं। तो आपने फरमाया मैं इनका नाम हसन रखता हूं। हुक्म कहां से हुआ है? अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ। और जब हजरत इमाम हुसैन पैदा हुए तो इनका नाम भी उन्होंने हरब रखा, और एक रवायत में आता है कि जाफर।
फिर सरकार आए, कहा क्या नाम रखे हो, बताया, कहा नहीं, मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ है कि नाम बदल दूं। कहा क्या रखना है सरकार, आप जैसी आपकी मर्जी। फरमाया इनका नाम मैं हुसैन रखूंगा। इसका मतलब ये है कि पैदा होते ही सारे फैसले अर्श से हो रहे हैं, जमीन में नहीं हो रहे। सारा काम जमीन में नहीं हो, सारा काम ऊपर से हो रहा है, अल्लाह के हुक्म से रसूलुल्लाह सब कर रहे हैं। और परवरिश भी जो हो रही है वो नबूवत के साए में हो रही है, रिसालत के साए में हो रही है। और जाहिर बात है, यूं तो अगर बयान किया जाए तो बहुत लंबा लंबा मामला हो जाएगा, और आप लोग सुन रहे हो करबला का बयान रोज हो रहा है, तो बहुत बातें सुनी भी होंगी आपने बहर क्या कि परवरिश जो हो रही है वो भी रसूलुल्लाह के साए में हो रही है। और ऐसी परवरिश हो रही है, ऐसी परवरिश हो रही है कि साहब मत पूछिए। हजरत खातून जन्नत ज़हरा बतूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबजादी हजरत फातिमा, जब वो चक्की भी पीसती थी ना, ये दहेज में मिला था उन्हें, तो कभी कभी नींद से जब बेदार होते शहजादे, तो बचपनी की वजह से रोता भी है बच्चा, तो रोते, तो जब आप बहलाने के लिए उठती, तो बच्चे को जब बहलाने के लिए उठती तो कुदरत खुदा की देखिए कि बाकायदा चक्की चलती रहती, चक्की बंद नहीं होती। एक दिन उन्होंने सरकार से कहा, सरकार ये चक्की मैं चलाती हूँ और उसके बाद जब मैं उड़ जाती हूँ तो भी चलती रहती है। क्या तुम्हें पता नहीं, तुम्हें पता नहीं है, दरअसल तुम्हारे घर में जन्नत के फरिश्ते आते हैं और तुम्हारे काम में हाथ बटाते हैं। परवरिश तो देखो, बहुत सी बातें हैं और ऐसी बातें हैं जो हमारी ईमान को जिला देती है और जन्नत की जमानत बनती है। जो इनसे मोहब्बत करेगा, एक हदीस और सुनाता हूं मोहब्बत के सिलसिले में। अन याल बिन मुर्रा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन अहब्बल्लाह मआ मन अहब्ब हुसैन। तर्जुमा, हजरत याला बिन मुर्रा एक सहाबी हैं, वो कहते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं, और अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। हजरत इमाम अली मकाम से जो मोहब्बत करता है उससे कौन मोहब्बत करता है? अल्लाह मोहब्बत करता है। और ये कौन फरमा रहे हैं? सरकार फरमा रहे हैं ना, खुद हुजूर फरमा रहे हैं, हमारे आका फरमा रहे हैं। और हमारे आका यूं नहीं फरमा रहे हैं, बल्कि हमारे आका की शान ये है कि मा यंतिकु अनिल हुआ इन हुआ इल्ला वहयु यूहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक कहते ही नहीं जब तक खुदा का हुक्म नहीं, बोलते ही नहीं जब तक खुदा का। तो ये खुदा का हुक्म जब सरकार को होता है तो सरकार अपनी जबान सरकार की होती है, कलाम खुदा का। तो भला बताओ उनके फजाइल और उनके मनाक़िब हम जैसे सियाकार लोग क्या बयान करें। बेशक वो जन्नत में जाएगा जिसके दिल में हसनैन की मोहब्बत, और बेशक वो खबीस कभी जन्नत में नहीं जा सकता जिनको इनसे अदावत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें, आपको और सारे सुन्नी मुसलमानों को मुहिब्बाने हसनैन करीमैन बना, उनका सच्चा गुलाम बना। तो मैंने कुछ तबर्रुकन
हमारे हाजी अकरम साहब ने क्योंकि मनक़बत भी उसी टाइप की पढ़ी, तो मेरा भी कुछ लगा कि मुझे भी उन्हीं खरीदारों में शामिल हो जाना चाहिए। आपने पास पूंजी तो कुछ नहीं है, लेकिन कुछ तो ले जाओ, इसलिए मैं भी कुछ बयान कर गया। अब सूरह यासीन शरीफ के सिलसिले में हमें आपको दो चार बातें बतानी है। टाइम हो गया है, मगर फिर भी थोड़ा सा आपको रहना है, थोड़ा सा। ये भी हदीस शरीफ से सूरह यासीन जो है ना, ये आप और हम सब बहुत पहले से सुनते आए हैं कि ये दिल है कुरान का। इंसान के आज़ा में सबसे ज्यादा अहम जो कोई अज़्व है वो है दिल, वहीं जान रहती है, ऐसे अतिब्बा कहते हैं। सूरह यासीन को क्यों दिल कहा जाता है कि सरकार फरमाते हैं कि इसको खुद पढ़ो, और अगर कोई मरने वाला हो, निज़ा की हालत में हो, तो उसको भी पढ़ो, उसको सुनाओ, पढ़ करके सुनाओ। उसकी वजह बयान कि जब आदमी का आखिरी वक्त आता है तो सारे अज़ा काम करना बंद कर, सब कुछ बंद कर, हाथ पैर ये वो सब चलना सब कुछ बंद हो जाए, लेकिन कल्ब की हरकत जारी है। कल्ब जिंदा रहे, जब तक आदमी नहीं मरता, जब तक के कल्ब की हरकत जारी रहती। और जब तुम सूरह यासीन पढ़ते हो तो ये इंसान का दिल जो होता है कुरान के दिल से तक़वियत और अनवार तजल्लियात जो कुरान पाक के हैं, यानी सूरह यासीन के जो हैं अनवार तजल्लियात, वो मुसलमान के दिल में सरायत करते चले जाते हैं। और जब फरिश्ते उसको सुनते हैं, वो जो रूह कब्ज करने के लिए आते हैं, जब वो सुनते हैं कि सूरह यासीन पढ़ी जा रही है और उसके अनवार तजल्लियात जो हैं वो क्या कहते हैं मरने वाले के दिल में सरायत करते चले जाते हैं, तो फिर वो लोग यानी वो जो कब्ज़े रूह के लिए मुतय्यन है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और उनके मुआविनीन जितने फरिश्ते हैं, वो सारे के सारे फरिश्ते जो हैं उस मरने वाले पर मेहरबान हो, और उसके बाद उसकी रूह को बड़ी ही आसानी के साथ में उसको कब्ज़ करते हैं और उसका खात्मा ईमान पर हो। सुभान अल्लाह। इससे बड़ी दौलत और कुछ नहीं है, इससे बड़ी दौलत कुछ नहीं है जो आदमी ईमान के साथ में दुनिया से चला जाए। ये मत समझ लेना आप, या कोई ये मत समझ ले कि साहब ईमान पर खात्मा होना ही ये सबसे अहम बात है। दुनिया में चाहे आदमी कैसा भी रहे, लेकिन जब वक्त निज़ा आए उस वक्त ईमान को सलामत बचा के निकल जाए। हजरत इमाम राजी के पास में शैतान आया, आखिरी वक्त था, निज़ा का आलम तारी होने वाला था, तो उसने सवाल कर दिया, ये बताओ अल्लाह है कि नहीं है, अल्लाह मौजूद है कि नहीं है। अल मलफूजात में आला हज़रत ने ये वाक़या लिखा है। तो उन्होंने कहा हाँ है। तो कहा बताओ इसकी दलील क्या है, तुम बहुत बड़े आलिम हो, बहुत बड़े मुफस्सिर हो, तुम्हारा जवाब नहीं है, बताओ दलील दो, बगैर दलील के मैं नहीं मानता। तो उन्होंने दलील दिया। तो शैतान भी कोई कम बड़ा आलिम नहीं, वो भी बहुत बड़ा आलिम। तो उसने उनकी दलील को काटा, कहा ये दलील तुम्हारी कमजोर है, अल्लाह के वजूद पर ये दलील कमजोर है। तो आपने दूसरी दलील दी, तो उसने उस दलील को भी काटा, कहा ये भी दलील कमजोर है, वजूद खुदा पर, अल्लाह के वजूद पर, अल्लाह है, अल्लाह मौजूद है, ला इलाहा इल्लल्लाह हम पढ़ते हैं ना, अल्लाह एक है। फरमाते हैं 360 दलीलें दिया। हज़रत इमाम राज़ी है, मरते मरते कितने बड़े आलिम होंगे वो हैं? उस वक्त उन्होंने कितना ज़हन हाजिर था उनका, 360 दलीलें दी। और शैतान ने अब आखिरी वक्त आ गया, अब रूह कब्ज कर रहे हैं, क्या कहते हैं हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम, तो अब ज़बान भी लड़खड़ाने लगी और उसके बाद आधा काम करना बंद करने लगे। तो उन्होंने बड़ी हसरतों के साथ में चारों तरफ नजर डाली कि अरे पूरी जिंदगी मैंने वजूद इलाही पर किताबें लिखी, तकरीरें की और लोगों को बताया, और ऐसा लगा यकीन डगमगा गया। शैतान का काम यही है
ये इंसान की यकीन को डगमगा दे, इंसान के क्या कहते हैं कि जो उसको पूरा मुहकम यकीन कामिल है, उस यकीन कामिल के अंदर कुछ खलल पैदा कर दे। तो ये शैतान ने खलल पैदा कर दिया। तो उन्होंने बड़ी हसरतों के साथ में देखा, इधर देखा इधर देखा। तो ऐसे वक्त में देखो जो कामिल लोग, कामिलुल ईमान है ना, हमारे यहाँ पीरा मुरीदी का सिलसिला भी है, और हम लोग किसी न किसी पीर से मुरीद होते हैं। तो उनके पीर भी थे, हजरत इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह के भी पीर थे, मगर वो सैकड़ों मील दूर थे। ऐसा नहीं कि अगर हमारा असलम भाई के आमने सामने, ऐसा नहीं था, बहुत लंबी दूरी थी। जब उन्होंने चारों तरफ हसरतों से देखा कि कोई मेरी मदद कर दे, तो उन्होंने देखा कि वो दूर दराज इलाके में उनके पीर रहते थे, हजरत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह। तो उन्होंने देखा कि वो अपनी मस्जिद के दीवार पर बैठे हुए वजू फरमा रहे, और जब उन्होंने वहां से सुन लिया कि शैतान इनको बहका रहा है, तो उन्होंने वजू करना बंद कर दिया और इन दोनों की तरफ देखने लगे। दरो दीवार नहीं रहे होंगे, शायर नहीं रहे होंगे, बीच में पर्दे नहीं रहे होंगे, मगर औलिया किराम की निगाहों से पर्दे हटा लिए होंगे। उनके लिए पर्दा कोई माने नहीं रखता। क्यों? ये आंखें जो हैं वो पर्दे, जब पर्दा पड़ता है तो देखने से माजूर होती है, लेकिन एक आंख और है जो कल्ब में होती है। इकबाल कहते हैं इसलिए, ज़बान से पढ़ भी लिया ला इलाहा तो क्या हासिल, ज़बान से पढ़ भी लिया ला इलाहा तो क्या हासिल, कल्बो नजर मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, कल्बो नजर मुसलमान जो नहीं तो कुछ भी नहीं। तो कल्ब में जो एक आंख है, जो रोशनी है, और वो ईमान की रोशनी है। जब ईमान की रोशनी से, जब ईमान दिल रोशन हो जाता है, तो अब उसके लिए करीब और दूर कोई माने नहीं। बैठे बैठे अर्श आज़म को देख लेता है, लौह महफूज को देख लेता है, लिखने वाला कलम जो तकदीरें लिख रहा है यहीं से देख लेता है। और वली कामिल ऐसा होता है कि जिसको चाहता है लिख देता है, यानी उनसे कलम को छीन लेता है और खुद अपने हाथ में लेता है और लिख देता है। इसीलिए अल्लाह में इकबाल फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, ये दुनिया और उसकी चीजें क्या है, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे। लौह वो जहां सारी तकदीरें लिखी हुई हैं, कलम वो जो लिख रहा है। जब बंदे मोमिन अपनी विलायत के आखिरी मुंतहा पर पहुंचता है, तो लिखने वाले कलम को अपने हाथ में ले लेता है, और उसके बाद लौह को अपने हाथ में ले लेता है। जो चाहता है लिख देता है, जो चाहता है मिटा देता है। देर हो रही है थोड़ा सा, है ना। बहर कह मैं क्या कह रहा था कि उन्होंने देख लिया वहां से, वो भी उनको देख रहे थे, सुन रहे थे क्या कर रहे हैं ये दोनों। और इन्होंने जब हसरतों से देखा उनको, अपने पीर साहब को, तो आंखों से उन्होंने आंख से भी बात हो जाती है, सिर्फ जबान से बात होना ऐसी बात नहीं है, आंख भी बात करती है। तो उन्होंने अपनी आंखों से जब हसरतों के साथ में अपने उनको देखा, तो कहा हैरान मत हो, परेशान मत हो, क्या खुदा के वजूद पर दलील दी जाती है? इस खबीस को बोलो कि मैं खुदा को मानता हूं और बेदलील मानता हूं। आफताब आमद दलील आफताब, आफताब आमद दलील। अरे सूरज निकला हो, फिर कोई बोले कि ये बताओ कि सूरज निकला है कि नहीं निकला, उसकी दलील दो, तो उसकी कोई क्या दलील है? आफताब का आना ही इस बात की दलील है कि आफताब निकल चुका है। तो अल्लाह के वजूद के लिए क्या दलील? हम बिला दलील मानते हैं अल्लाह। मेरे दोस्तों, तो ये सरकार ने फरमाया कि ऐसा किया करो, है ना। बहुत सारी बातें हैं जो अगले जुमे में इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा। देखिए, सूरह यासीन में अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र भी है, हश्र नश्र का भी जिक्र है, सूर फूकने का भी जिक्र है, कयामत का भी जिक्र है, सरकार की सबसे पहला जिक्र सरकार का है। और उसके बाद में गोया के अगर आदमी ने एक मर्तबा खुलूस नियत के साथ में यासीन शरीफ पढ़ लिया, तो गोया कि उसने 22 मर्तबा कुरान पढ़ा।
ये फजीलत जो है सूरह यासीन की है कि नहीं। तो टाइम तो हो गया है, देर खैर बहुत सी बातें अच्छी आ गई। मुझे ऐसा लगता है कुछ अच्छी कारआमद बातें सुनने को मिल गई। हमारी ज़बान में जो भी अल्लाह ताला की तौफीक से मैं बयान कर सका बयान किया। अब आप लोग याद रखना सूरह यासीन की इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो बहुत सारी क्या कहते हैं फजीलतें हैं। ये एक किताब है जिसका नाम है तफसीर रूहुल बयान। मैं इसी से आपको इंशाअल्लाह बयान करके बताऊंगा जो बहुत सारा है। आज का बयान मैं यहाँ पर खत्म करता हूँ और आइए सलातो सलाम पढ़ना। अस्सलाम वालेकुम।